So let's get started with infringement of copyright and remedies. Okay. So first we will see the introduction part as usual, and this is the last part of the Copyright Act and the whole playlist. This is the last video. The rationale of providing copyright protection to the owner of the work is to enable him to reap a fruit of his labor and investment to the exclusion of others. इसका मतलब क्या है? ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? So that the owner of the work can reap the fruits of his labor. जो भी उसने काम किया उसका fruits उसी को मिले, किसी और को ना मिले. If a person uses any of the exclusive rights available to the owner of copyright without his permission, तो ये रहा इसका मेन थिंग कि इन्फ्रिंजमेंट कब होता है? जब किसी पर्सन का जो एक्सक्लूसिव राइट्स है उसको उसके बिना परमिशन के कोई सेकेंड पर्सन यूज करता है, then it is known as the infringement. Without his permission or without any license granted by the registrar of copyright, he shall be deemed to have infringed copyright provided such use was also not allowed under section 52. Section 52 इसका exception होता है, that is fair dealing. Okay. Bob Merrill Company versus Isidore Strauss and Nathan Strauss, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि इन्फ्रिंजमेंट हम कब मानेंगे कि हुआ है? तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉपीराइट इज अ trespass on a private domain owned and occupied by the owner of the copyright and therefore protected by law. And infringement of copyright or piracy, which is a synonymous term, is in this connection consists in the doing by any person without the consent of the owner of the copyright of anything the sole right to do which is conferred by the statute on the owner of the copyright. तो वही है कि इस केस में क्या ऐड हुआ था कि infringement मतलब क्या होता है? Trespass on a private domain. Okay, जो भी किसी का private work होते हैं उसमें अगर हम trespass करते हैं, उसको यूज करते हैं, that is called as a infringement. Okay. नेक्स्ट इज व्हेन कॉपीराइट इज इन्फ्रिंज्ड अंडर द एक्ट. तो हमारे कॉपीराइट एक्ट 1957 में क्या दिया हुआ है कि 51 क्लॉज ए में दिया हुआ है कि कब ये इन्फ्रिंजमेंट होता है. तो क्या लिखा है? दो क्लॉजेस इसमें ए एंड बी. When any person without a license granted by the owner of the copyright or the registrar of copyright under this act or in contravention of the condition of a license so granted or of any condition imposed by a competent authority under this act does anything the exclusive right to do which is by this act conferred upon the owner. मतलब कि ऐसा कुछ भी करता है जो कि इस एक्ट ने सिर्फ उस ओनर को दिया है और उस चीज का उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो ऐसा कुछ करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा. सेकेंड क्या है? Permits for profit any place to be used for the communication of the work to the public where such communication constitutes an infringement. मतलब कि वो कहीं ऐसी जगह पे जाकर के अपनी चीजों के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है जहां से वो प्रॉफिट गेन कर रहा है और वो उस जगह पर जाकर के ही इन्फ्रिंजमेंट कॉज कर रहा है ऑफ दैट कॉपीराइटेड वर्क. ओके. Unless he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement. So until and unless he doesn't know, he can't be curtailed under this provision. B clause कहता है when any person makes for sale or hire or sales or let फॉर हायर और बाय वे ऑफ ट्रेड डिस्प्लेस और ऑफर्स फॉर सेल. मतलब ये सेल वगैरह वाला चीज होगी. ठीक है. और सेकंड क्लॉज क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीजें हो गई. एंड थर्ड क्या बोलता है? एग्जिबिट इन पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो गई. और फोर्थ कहता है इम्पोर्टेंट इंडिया. ये भी क्या हो जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा अगर वो उसको लाइसेंस एंड और ये सब नहीं मिल रहा है. ठीक. अब आता है कि इन्फ्रिंजमेंट बाय कॉपिंग. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल दीज इन्फ्रिंजमेंट काइंड ऑफ. इसमें 3 टाइप के कॉपिंग होते हैं: डायरेक्ट कॉपिंग, इनडायरेक्ट कॉपिंग एंड सबकॉन्शियस कॉपिंग. ठीक है. डायरेक्ट कॉपिंग मतलब कि डायरेक्टली आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो उनके जैसे वर्क को खुद रिप्रोड्यूस कर दे रहे हो. ठीक है. सेम काइंड ऑफ बुक को आप सेम तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक. दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉपिंग. इनडायरेक्ट कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग द वर्क ऑफ अ पर्सन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. की नोवेल था उसको हम प्ले में कर दिए या कुछ म्यूजिक था उसको एक वीडियो के फॉर्म में हम पब्लिश कर दें. दैट इज ऑल नोन एज द इनडायरेक्ट कॉपिंग. ओके. सबकॉन्शियस कॉपिंग मतलब कि हमारा इंटेंशन तो नहीं था कॉपी करने का बट
ऐसा होता है ना कि हम कई चीजें कई बार पढ़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कविता है जो हमने कहीं पढ़ी है और फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर हम जब वापस से लिखते हैं ना तो वो वापस से लिखा जाता है और हमें ऐसा लगता है नहीं ये हमारा खुद का क्रिएशन है। तो दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस कॉपी, कि आप इंटेंशनली उसको कॉपी नहीं कर रहे हो लेकिन वो हो जाता है। तो कॉपिंग में ऑकर सबकॉन्शियसली वेयर अ पर्सन रीड्स, सीज और हियर्स अ वर्क, फॉरगेट्स अबाउट इट बट देन रिप्रोड्यूसेस इट जेन्युइनली बिलीविंग इट टू बी हिज ओन। तो ये 3 टाइप के कॉपिंग है विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्ड्स में। ओके, नेक्स्ट आता है रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट। तो 2 टाइप के रेमेडीज हैं, सिविल रेमेडीज एंड क्रिमिनल रेमेडीज। तो फर्स्ट वी विल सी सिविल रेमेडीज। तो सिविल रेमेडीज में 5 चीजें आती हैं। क्या क्या? पहला इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। व्हाट इज इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन? Interlocutory means kind of temporary injunction. Okay, the granting of an interlocutory injunction is the most significant remedy. It is the most significant remedy. Most often an application for interlocutory relief is submitted and the matter rarely progresses past the interlocutory stage. A grant of an interlocutory injunction must satisfy 3 conditions. क्या क्या होना चाहिए? हर जगह हम लोग इंजंक्शन में पढ़ते आए हैं कि प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन कन्वीनियंस होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी इंजरी दैट इज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब कि इररिपेरेबल लॉस होना चाहिए। तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगी? इंजंक्शन ग्रांट करेगी। ओके, फिर आता है पेक्यूनरी रेमेडीज। 3 मॉनेटरी रेमेडीज आर आल्सो देयर remedy are also available to the copyright owners under section 55, 58. First, a profit account that enables the owner to demand the amount of money equal to profit obtained by illegal means. Second, compensating damages which enable to the owner, मतलब कि जितना उसको प्रॉफिट हो उतना आप फाइन दे दो। दूसरा, जितना डैमेजेस हुआ है रियल ओनर को आप उसके लॉस को इनकर करो। एंड थर्ड क्या है? कन्वर्जन डैमेजेस दैट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आइटम्स वर्थ। ठीक है, ये 3 तरीके से पेक्यूनरी रेमेडीज दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंटोन पिलर ऑर्डर। तो एंटोन पिलर ऑर्डर एक, इसका नाम एंटोन पिलर क्यों रखा गया था? आई वुड लाइक कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वैसे इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। सो इसका नाम इसलिए लिखा हुआ, इसका नाम एंटोन पिलर ऑर्डर इसलिए आया था बिकॉज ऑफ दिस केस। ओके, the ownership in Anton Pillar AG versus manufacturing processes gave rise to the name of the Anton Pillar order. There are the following components in an Anton Pillar order. First, a court must issue an injunction prohibiting the offender from damaging or stealing property. मतलब पहली चीज क्या होनी चाहिए कि court must issue an injunction, जो क्या कहे कि आप डैमेज नहीं कर सकते और प्रॉपर्टी को स्टील नहीं कर सकते हो। सेकेंड, कोर्ट्स, और पहली बात तो क्या होना चाहिए? इंजंक्शन होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट्स ऑर्डर्स allows the plaintiff's attorney to search the defendant's property and remove any item they are keeping in safe keeping. ठीक है, तो मतलब कि कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है प्लेंटिफ के अटॉर्नी को या प्लेंटिफ को भी कि आप जाओ डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में और वहां पे जो भी आपको लगे कि आपके आइटम को इन्फ्रिंज करें, आपके वर्क को इन्फ्रिंज करें, उन सारे आइटम्स को आप साइड लेकर के आओ। थर्ड, इन ऑर्डर दैट Third, an order that defendant be directed to reveal the names and addresses of suppliers and consumers. Okay. Next one is Mareva injunction. Mareva injunction is used when the court thinks the defendant is attempting to stall or prevent the implementation of any judgment rendered against him. मतलब कि ये इंजंक्शन कब ग्रांट होता है? जब कोर्ट को लगता है कि जो भी डिक्री पास हुई है डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो उसको अच्छे से फुलफिल, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तब ये मरेवा इंजंक्शन पास होता है। The court has the authority to order him to surrender all or any portion of his property to the court in order to satisfy the decision. This is stated in the Civil Procedure Code 1908 and in this order and rule. Okay. 38 Rule 5. Norwich Pharmacal Order. Typically, the Norwich Pharmacal Order is passed when a third party must be contacted for information. That is not that much important. 4 जो अभी इसके पहले वाले 4 थे वो ज्यादा important है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल रेमेडीज। ये सिंपल सा है कि इम्प्रिजनमेंट होगा 3 years तक के लिए विच इज नॉट लेस देन 6 months। मैक्सिमम फाइन 2000 है बट इट कैन नॉट बी लेस देन, मतलब कि सॉरी मिनिमम फाइन है इसमें 2000, इट कैन नॉट बी लेस देन 50,000। ये स्टेटमेंट थोड़ा इधर उधर आप करेक्ट कर लीजिएगा। सर्च एंड सीजर ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, डिलीवरी ऑफ काउंटरफिट गुड्स टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सो आई होप कि आपको ये पूरा सीरीज कॉपीराइट एक्ट का समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन freely ask me in the comment section. I will be very happy to help you out with that. And thank you, and looking forward for the next upcoming playlist. I hope so it would be BNS kind of.
BNS most probably from tomorrow. So thank you.